देख रहे हो गरीबों, देखो अमेजोन के लोग आए हैं मेरा लाइव सेशन अटेंड करने। फेसबुक, देयर शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन, अमेजोन शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन, मार्केट इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन। ऐसा तो नहीं 100% हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। रांची इज इन झारखंड। Jharkhand. Yeah. So my general knowledge is also good. See, there are two channels in IT. अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज़ पढ़ते हैं, मांग बोलते हैं ना, वो मांग, मेटा, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मांग, एनीवे CEO बना दिया आप लोग को, देखो आज। I am thinking to switch from manual to In Amazon, prior to this, I used to work in Amazon. Okay, hello guys. My name is Krishna. I hope everybody can hear me. Yeah, hi Krishna. Good evening. Yeah, okay, fine. Very nice. Okay, I will respect everyone's time, so we'll just start now. I know if I give some more time, then people may join more. So, but it's okay. We'll just get started. So I'll just give my introduction. Mostly all of you will mostly know me, but still I'll just give a brief introduction about myself. So basically, my name is Krishna and I am from Bangalore. So basically, I am from Odisha, but I am staying in Bangalore from past 15 years. So I did my schooling and college, everything from Bangalore. And then now currently I'm working as a big data tester, ETL, data warehouse, BI, and manual testing. So these are some of the fields currently I'm working in. Yeah, that's pretty much. So just let's get started with the questions. And I hope everybody understand Hindi and English. Anybody who doesn't understand Hindi, just raise your hand or speak. सबको हिंदी समझ में आती है, मतलब फिर ठीक है, साइलेंस को मैं ऐसे ही समझो। ठीक है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो यू ऑल कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. Whoever grabs the opportunity. Yeah, please go ahead. Yeah. Hi Krishna, Payal here. Okay, so I am working as a test analyst. Actually, I'm a manual tester in Cognizant. I am thinking to switch from manual to automation testing. So I just don't know where to start. Like I have started with the MySQL, but I want to start with ETL and all. So what are the free resources which you have used, or maybe you can guide to start as a beginner? Yeah, sure. That is all, Payal. Yeah, Okay, fine. ठीक है. Where are you from, Payal? I am from Ranchi, Ranchi is in Jharkhand. Jharkhand. Yeah. Oh, my general knowledge is also good. Okay, I am recording this session and maybe I'll upload this video on YouTube. So you all can see this video. I am recording from my cell phone there, so that the video clarity comes out good. Those who have seen live session 1.0, the video quality is not so good. So I'm recording from the phone also. Okay. So I'll not ask you to turn on the video until unless you are okay with it. Okay, but I will surely upload the video until unless something which should not go, I will edit that and then I'll upload the video on YouTube. So Payal, I'm not sure to what extent you are good at coding or you feel कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ coding में. I hope everybody is okay in Hindi. Just give a thumbs up if you are okay in Hindi, or I'll just mix Hindi in English. Hindi okay. Yeah, mix is better. Mix is better. 2-3 hands didn't go up. Nikita, you're okay in Hindi? And Mubashir. Yes, okay, fine. Chalo, thank you. Yeah, okay. So I'll just make English and then speak so that everybody can relate, because that's how we speak. So Payal, I know most of you must be having this question. So basically, see, automation testing needs a lot of coding. So basically, you can say a developer codes the highest. The hardcore coder, day and night they code, and the next step, the next coding comes. Who does is automation tester. So to design the framework, so जैसे जब डेवलपर डेवलप कर देता है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, उसको टेस्ट करने के लिए एक जो ऑटोमेशन इंजीनियर है, उसके जो भी हम जैसे अगर
एक टेस्टिंग इंजीनियर है, वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो इस टेस्ट केस को वो टेस्टिंग करने के लिए कुछ ऐसा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस फ्रेमवर्क के थ्रू कि जब हम वो कोड रन करें, जब वो जो फ्रेमवर्क रन करें, तो हमारी जो मैनुअल प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग है ना वो कम हो जाए। ऐसा तो नहीं 100% हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज रिसेंटली मैं भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसमें मैं अजोर में काम कर रहा हूँ। तो जब अजोर में काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं बहुत कुछ ऑटोमेट करने की कोशिश की, और इवन एक डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाने में मदद कर रहा है। सो उसमें हम हर चीज़ ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम डिफेक्ट पाओगे तो उसमें डीबग तो करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से तो क्या है, अगर तुम अपने, पहली बात तो ये है कि तुम समझो कि मेरा क्या मेरी पर्सनालिटी कोडिंग जैसी है या नहीं, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचो कि हाँ अभी जोश में आके कोडिंग कर लिया और 5 साल बाद पछता रहे हैं, बाल उड़ गए सर से ऐसा कुछ ना हो। तो इसीलिए आप समझो कि हाँ क्या कहते हैं, मेरे को कोडिंग अच्छी लगती है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विथ पीपल अराउंड यू, डोंट गेट इनटू पीयर प्रेशर। तुम शांति से बैठो और सोचो कि मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है या नहीं। 2-4 प्रोग्राम देखो, सीखो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ो, अगर सही लगता है तो ठीक है। तो अगर नहीं लगता है तो ऑटोमेशन छोड़ दो फिर, ठीक है। ईटीएल टेस्टिंग में बहुत स्कोप है, ठीक है। तो स्टार्ट आप बस ईटीएल टेस्टिंग में अगर करोगे तो स्टार्ट आप बस एसक्यूएल सीख लो, डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। ईटीएल टेस्टिंग प्रोसेस सीख लो। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने क्या कहते हैं, जो भी ईटीएल टेस्टिंग के लिए जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आप क्या कहते हैं रेफर कीजिए। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से, W3 स्कूल से पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट से पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एसक्यूएल प्रैक्टिस आप ऑनलाइन किसी भी W3 स्कूल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑरेकल अगर आप इंस्टॉल कर लें तो आप ऑरेकल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी MySQL या SQL है या MS SQL सर्वर है या जो भी है, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा तो उतना काफ़ी है। SQL टू एक्सटेंट वेयर यू कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल जॉइंट्स लगा सकते हो, 2 या 3 टेबल में जॉइंट्स लगा ले रहे हो, यूनियन ऑपरेटर्स, यूनियन ऑल जो भी है, सेट ऑपरेटर्स हैं, इसको इस्तेमाल कर पा रहे हो। और जो फंक्शंस हैं, SQL के फंक्शंस हैं, उसको आप सही तरह से इस्तेमाल कर पाते हो। एटलीस्ट अगर आप प्रॉब्लम को देखो, पढ़ो, तो उसको आप कॉन्टम्पलेट करके एटलीस्ट दिमाग में फ्रेमवर्क बना पा रहे हो कि हाँ अगर ये मैं फंक्शन यूज़ करूँगा, ये जॉइंट्स लगाएंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन हो या राइट आउटर जॉइन हुआ, ये लगाऊंगा, तो इफ़ आई डू दिस देन आई विल गेट द रिजल्ट। इफ़ यू आर एबल टू कम टू दैट स्टेट देन ओके, देन दैट इज इनफ। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईटीएल टेस्टिंग आप सीख लो, डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग, और BI टेस्टिंग बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आप डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट सीख लो, SQL सीख लो, और आप ईटीएल टेस्टिंग में घुस जाओ। फिर ईटीएल टेस्टिंग में, क्योंकि डेटा जो है, डेटा है नेक्स्ट गोल्ड है, बोलते हैं ना ऑयल, नेक्स्ट ऑयल, मतलब ऑयल वाली कंट्री बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बहुत GDP हाई रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कंपनी के पास डेटा है ना वो नेक्स्ट बिलियनर कंपनी बनेगी या नेक्स्ट बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। तो इसलिए चाहे आप फेसबुक देख लो, अमेजोन देख लो, ये लोग डेटा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। आप कभी अमेजोन में सर्च कर लोगे कुछ, वो ऑटोमेटिकली आपको वही चीज़ दिखाने लग जाएंगे आपके उसी प्राइस रेंज में, और उसी टाइप का प्रोडक्ट दिखाने लग जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उतना डेटा एनालिसिस हो रहा है। तो डेटा जो है नेक्स्ट 30 ईयर्स तक तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। डेटा में आप रहोगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये ऐसा है ना, आप ईटीएल टेस्टिंग सीख लो, डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग सीख लो, SQL सीख लो। फिर इसको, ये जो आपका ईटीएल टेस्टिंग है, इसको आप ऑटोमेट करना नेक्स्ट लेवल सीख सकते हो। बट पहले आप ईटीएल टेस्टिंग में एक आप जॉब मिल जाए, उसके बाद आप वो आगे ऑटोमेशन पार्ट सीख सकते हो। तो अभी से जावा, सेलेनियम सब सीखोगे। मेरे हिसाब से जावा बहुत टफ है, ठीक है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑटोमेशन सीख रहा हूँ, मैं पाइथन सीख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फ्रैंकली बोलूँगा, मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद पाइथन सीख रहा हूँ। जावा मैंने सीखा था, मैं कोडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा था अपने कॉलेज टाइम में, बता रहा हूँ। अभी तो मैंने ऐसे सपोर्ट में काम किया, फिर अभी तो टेस्टिंग में आके जो भी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, डेवलपर तो मैं स्टार्टिंग में था नहीं, ठीक है। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब, क्योंकि मेरे को कोडिंग पसंद है, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप कोडिंग करने लगे, सो आप पहचाने आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो मैं कॉलेज टाइम में अच्छा कोडिंग करता था, बट मेरे को कोडिंग जॉब मिला नहीं, ठीक है। खराब कॉलेज से पढ़ा या जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहते हैं सपोर्ट में घुसा, फिर उसके बाद अभी ईटीएल टेस्टिंग मैंने किया। अभी मैं पाइथन सीख के ईटीएल टेस्टिंग को मैं ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ईजी है, आप SQL सीखिए, और मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है लिंक्डइन पे, आप वो फॉलो कीजिए और आप टिक करते रहिए कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और आप क्या कहते हैं जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको और कुछ
गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को लिंक्डइन में पिंग कीजिए, मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं आपको मैसेज में ही कर दूंगा, ठीक है, या फिर ऐसा लाइव सेशन करेंगे तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ईटेल टेस्टिंग फोकस कीजिए, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से कीजिए, उसमें ऑटोमेशन आगे सीख लेना। आपके पास एक जॉब आ जाएगा ना, अगर आप 3 से 4 साल एक्सपीरियंस, आराम से 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा आपको अभी के मार्केट कंडीशन में, 8 से 10 लाख आराम से मिल जाएगा। आप वो लीजिए, कम से कम पैसे रहेंगे आपके पास, और ईटेल टेस्टिंग बहुत टफ नहीं है, सैटरडे संडे टाइम बिताइए एंड यू कैन लर्न ऑटोमेशन ऑल्सो। तो जावा सेलेनियम सीखने की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है ऐसा, बट आपको ऑलरेडी जावा सेलेनियम मालूम है, उसमें मास्टर करना चाहते हैं तो ठीक, अप टू यू, ठीक है ना। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन पायल। यस कृष्णा, लेकिन क्या है ना कि जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं, सपोज उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी हम नेट से या फिर कहीं से नॉलेज ही ले सकते हैं, हमें पता नहीं है एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट में वो काम क्या करते हैं। एंड ऑब्वियसली अब अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उनको एक्सपीरियंस चाहिए होगा ये सारी चीज में। तो वो चीज को कैसे कैसे फिर हम करें? ठीक है, कौन कौन चाहते हैं मैं इसका आंसर करूं? थम्स अप देना। 4 लोगों ने दिया तो मैं आंसर करूंगा। नवीन, प्राची नहीं चाहते यार, आप लोग का आंसर दे। 2 ही लोग हैं, और कोई चाहता है कि मैं ये आंसर दूं? पायल आप फिर से दोहरा दो क्वेश्चन। वही कि अगर हम ये सारे नॉलेजेस ले लें नेट से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, तो फिर हमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट होता है ना कि कैसे एक्चुअल में रियल लाइफ प्रोजेक्ट में ये काम होता है, तो वो इंटरव्यू में वो लोग पूछेंगे, तो वो चीज को कैसे हैंडल करें? क्योंकि मैंने सेलेनियम का दिया है, जावा का दिया है, कहीं ना कहीं वो लोग पूछते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता रहता है। दो मेरे पास नॉलेज है सेलेनियम जावा का, लेकिन कैसे कोड को लोग मर्ज करते हैं या रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है वो नहीं पता, तो वो चीज को कैसे फिर हैंडल करूं? ठीक है, लास्ट में लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट 5 मिनट में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग के ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ओके, समवन एल्स? पायल मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, डोंट वरी। या समवन एल्स? वी हैव ओनली 15 मिनट्स। Yeah, hi Krishna. The same question as Payal. Actually, I will be working in ETL only, but I'm with the 1.6 plus experience. My question is like not getting calls, interview calls. So I'm planning to learn Selenium Python so I can go with higher package like that. Now, is it fine or did I missing something? Or I can wait for 2 years and apply. Just don't. Need that guidance. Yeah. That ठीक है, sure. So basically what I would say is you don't have to wait for 2 years. You don't have to learn Java Selenium until unless you are interested to learn. So don't take so much stress to learn that. I would say just wait for few months. Calls will increase. Okay. Why all the ETL projects are on hold? Or because of the current market condition. अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज़ पढ़ते हैं, because whatever market scenario is going through, Facebook, their share price has gone down, Amazon share price has gone down, market is going through a correction. So because of that, it will impact the economy, and if it is impacting the economy, obviously it will impact our job also. So IT will go through a correction phase. So in this correction phase, just wait for 6 months, things will improve. Those who have experience of more than 4 years, you are still getting calls because I have experience. So those who are more than 4 years experience, they are getting calls, no worries. Those who are less than 4 years experience, they might not be getting too many calls, but yes, just wait for some time, enhance your skills, enhance your SQL. Okay, if you have learned SQL, enhance your SQL skills, learn some ETL tools, okay, improvise and learn any one of the cloud, either Azure or AWS or whatever, or GCP, whatever. Or if you want to learn big data, okay, only through online resources. Don't have to go, if at all you want to join for learning purpose, okay. And for the practical and project part, at the end I will say for sure, okay. I hope that helps. Okay. Yes. Okay, So just wait for the market conditions, and then need to go ahead. Wait for some time. It's like 3-4 months, I guess things will fall in place, because just 2-3 months back things were even worse, but now at least things have picked up, okay. So there are calls, people are getting calls for at least 4-5 years experience plus are getting calls for interview. How the packages, like Selenium, they are in testing, they are saying like Selenium have the huge demand, so huge package. Is it true? Like a ETL tester can't get that much?
You saw my podcast, right? Yes, yes, Ah, that's then why asking to you should not have this doubt. It is only the way how you sell, okay, and your skills matter a lot. And see, I'll tell you your experience into 2 plus whatever package you are currently getting. This is the simple calculation. Suppose your experience is 4 into 2, 8 plus you have 4 years experience, 12. So 12 should be your benchmark. Okay. And if the market condition is good, then experience into 3. Okay. That is, or 2.5 at least. So experience, if you yeah, have we can experience, expect as a ETL tester. is a ETL tester. Yeah, You don't have to worry. Okay. yeah, Just be connected. I will surely guide you. Yeah. yeah, sure. Okay. Someone else? हेलो Yeah. am I audible? Mm-hmm. तो मतलब मुझे भी वही क्वेश्चन था कि मतलब मैनुअल टेस्टर से मतलब ग्रोथ पाथ मतलब कैसा रहेगा मतलब फ्यूचर में मतलब ग्रोथ पाथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो See, मतलब manual tester. मैक्सिमम मैंने बोलिए बोलिए. मतलब एज अ क्यूए भी मैंने यही देखा है कि मतलब लोग बहुत टाइम तक मतलब एक ही लेवल पे रहते हैं जैसे क्यूए इंजीनियर है तो क्यूए इंजीनियर फिर उनका जो ग्रोथ पाथ है सीनियर लीड मैनेजर मतलब वो बहुत डिफिकल्ट रहता है मतलब ऐसा तो मैं वो समझना चाहता हूँ मतलब एक ग्रोथ पाथ क्या रहेगा एज अ मैनुअल टेस्टर अगर आप प्रोसीड करते हो तो See, there are 2 channels in IT. If you enter as a technical engineer, so you can stay in technical line or you can change to management line. Okay, when you stay in technical line, so technical line में रहेंगे तो आप अभी समझ लो एसोसिएट इंजीनियर ज्वाइन किए, फिर इंजीनियर बन जाएंगे, सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर प्रिंसिपल इंजीनियर बन जाएंगे, फिर आर्किटेक्ट बनेंगे, आगे चल के आर्किटेक्ट ही बनेंगे, फिर उसके बाद सीटीओ बन जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा समझ लो. ठीक है ना, आर्किटेक्ट या डायरेक्टर ऐसे से बन जाओगे आप, बट मोस्टली टेक्निकल लाइन में रहेंगे. ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर या लीड क्यूए या डायरेक्टर क्यूए ऐसे कुछ बन जाएंगे. ठीक है, तो अगर ऐसा टेक्निकल लाइन में रहते हैं, अगर विथ पर्सपेक्टिव टू ओनली testing I'm telling. So if you move to management line, suppose after 5-6 years or 8 years you think I want to become a manager, so after maybe 8 or 10 years you become a manager, so you may become a scrum master, then you may become a project manager, then so and so forth, you become director and then CEO. Anyway, CEO बना दिया आप लोग को, देखो आज. ठीक है, so you take that path. So you have 2 paths, either you go technical path. So for me, I am very clear, I will never take management path. ठीक है, I will be technical path because I like technical things. Okay, I don't like dealing with people. Although I might be good in dealing with people, but I like dealing with computers more. Okay, maybe in future when I start my own company, that time we'll see management line will take. But from technical perspective, I'm very clear कि मुझे technical path में रहना है. So you can choose any of the path. Okay, after 8 or 10 years, you can take some safe course or some Scrum Master course, and then you can become Scrum Master and the project manager, so and so forth. Okay, but if you want to stay in technical line, so if manual testing you're doing, for sure you have to become something. Either you take automation or you take ETL testing. So I would suggest ETL testing because it's easy, and then ETL testing, then you can learn automation because big data, or obviously automation is there. If you take up Azure or AWS, you have to automate some of the things. Even for ETL testing also, you have to automate a framework where your ETL testing part becomes automated and then debugging part becomes manual. Okay, so that you have to choose. Okay, I hope that helps. हाँ सर, वही मतलब मैनुअल टेस्टिंग में वी कांट एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो मतलब उस. करेक्ट. तो मैनुअल टेस्टिंग में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, मैं सीधे बोलना चाहूँगा, किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग थोड़े टाइम में क्या कहते हैं, थोड़े टाइम में जैसे AI/ML ग्रो हो रहे हैं, फिर एब्सोल्यूट हो जाएगा. करेक्ट, लेगेसी बन जाएगा पूरा. टू सम एक्सटेंट यस, बिकॉज इफ यू आर वेरी गुड एट मैनुअल टेस्टिंग, there is possibility you may get good salary. There exceptions are there. ठीक है, but everybody cannot be this. But so either of this, either you take automation or you take ETL testing. So automation testing also has very good scope, but the thing is you have to learn a lot of coding. क्योंकि मैंने ट्राई किया था इनिशियली, तो जावा तो अपना नहीं लगा कि अपना सही है जावा. तो now I am learning Python where I will automate ETL part. So yeah, I hope that helps. Yes sir, thank you. Yeah, okay. Yeah, resources, I read the question, I will tell. Yeah, someone else? Yeah, hi Krishna. Am I audible? Yeah.
Yeah, so I'm a workforce analyst. So totally it is based on report analyst kind of Excel work and all. Now I want to switch to testing side. Mhm. So not that great. So from I'm a being a non-tech, I'm a mechanical graduate. Mm. And from 2017 past also I have got lots of questions like should I jump now and all. And if I jump, I'll get initial pay. मतलब freshers से वैसे ही आएगा क्या pay and all. Mm. And now it's okay if I go into the non-technical side of workforce analyst planning, scheduler, वैसे. So should I continue that path which I'm not that interested in, or should I jump into the testing side and all? Even if I jump, do I get that much salary? Like now it is like 5 to 6 my salary ranges. Experience? I have got 4 years of experience. So like I was in Amazon prior to this. I used to work in Amazon, and that there like I was an associate. Then like that IJPs have got like done. So देख रहे it's हो total non-tech side. देख रहे हो गरीबों, देखो अमेजोन के लोग आए हैं मेरा लाइव सेशन अटेंड करने। ठीक है, मांग बोलते ना, वो मांग, मेटा, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मांग। इफ यू डोंट नो, यू शुड नो मांग कंपनीज। सो सी, अमेजोन पीपल हैव कम हियर, व्हाट यार। Okay, anyways, jokes apart. So see, I don't know much about your role, so I cannot comment a lot on that. So if you want to jump, but don't jump from terrace for sure. Okay, don't worry, I'll give a solution. Okay. So those who are listening, so make sure I will cut this part. कृष्णा, विकास है। हाँ। हाँ, कृष्णा, एक्चुअली मैं मैनुअल टेस्टर हूँ और मेरे को मूव करना है बिग डेटा टेस्टिंग में, और मैं ETL टेस्टिंग लर्न भी कर रहा हूँ। तो आपने कहाँ से बिग डेटा टेस्टिंग लर्न करी थी? कैन यू प्लीज टेल मी द इंस्टीट्यूट नेम? बिग डेटा टेस्टिंग तो मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी सीखा भी नहीं है मैंने। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आई इसलिए मैं बिग डेटा टेस्टिंग करने लग गया। ETL टेस्टिंग मैंने एक इंस्टीट्यूट में सीखी थी। देखो, आप थियोरेटिकल सीख लो, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको करने रहता है। मैंने जो अजय सुनेजा के पॉडकास्ट में बोला था, ठीक है, आप सब लोग हैं और आप लोग सब जानना चाहते हैं इंस्टीट्यूट कौन सी है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे देयर वर 300 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन माई बैच, ओके, एंड इवन two of my friends have joined the call, one left, so even they know the reality. There were 300 students in the class. He was giving class to all the 300 students. I was the only one who could get 35 lakh. Okay, so that doesn't mean that I'm not denying saying that he didn't give class properly. He did give class, but only knowledge sharing हुआ। वहाँ पे 300 बच्चे थे, 300 के 300 ने क्यों नहीं 15 लाख 20 लाख का ऑफर मारा? देखो, आप 80% आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, 80 नहीं 90% आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। 10% होता है गाइडेंस की बात होती है, ठीक है। तो BTM लेआउट में तो वो इंस्टीट्यूट था, और उससे ज़्यादा नाम नहीं बता सकता मैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस, मेनी पीपल कीप ट्रॉलिंग मी, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहा, ये वो। देखो, ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता सकते पब्लिक फोरम में। तो इसलिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ। ऐसे बताने के लिए क्या है, बस एक वर्ड है तो है, खत्म हो जैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन सीख लीजिए, और आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके थियोरेटिकल सीख लीजिए, यूडेमी में सीख लीजिए, लर्न फ्रॉम W3 schools, tutorials point, any online resources, learn the theoretical part. SQL you have to practice, okay. And coming on, we have only 3 minutes, so I will answer. Sorry those who didn't get opportunity, I'm very sorry about that. We'll have one more session, okay. And coming on to project part, okay, project real time experience कैसे पाना है, study everything theoretical part, practice all the SQLs, okay, whatever SQL is possible, practice. Don't jump to hacker rank if you're not very good at SQL, because demotivate हो जाओगे। लास्ट सेशन में ही मैंने बोला था, हैकर रैंक जंप करोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ दोगे, मुझे आके अनफॉलो कर दोगे लिंक्डइन में, ठीक है, ऐसा मत करना। सो डू वट एवर इज पॉसिबल, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा अपना लेवल ऊपर करते जाइए।
पहले आप जॉइंट्स 2 टेबल के साथ कर रहे थे, फिर 2 टेबल के साथ जितने जॉइंट्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, सब प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं 10-10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देन जंप ऑन टू 3 टेबल्स। और जरूरत भी नहीं है, अगर आप 3 टेबल्स ना भी करेंगे ना, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में मेरे पूरे इंटरव्यू में मेरे करीब 70-80 या 100 के आसपास इंटरव्यू दिया, 1 या 2 ही कंपनी ने पूछा मेरे से 3 टेबल का जॉइंट्स, ठीक है। मोस्टली 2 टेबल्स की जॉइन ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस की बहुत हाई लेवल सीखना है। ओके, मैकेनिक, हाँ, वन ऑफ द मेंबर वाज फ्रॉम मैकेनिकल। सो यू लर्न दिस theoretical part, learn SQL, learn about testing practices, and then what you do is ठीक है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर जो है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट। whatever question you have, you make note of that question and ask me, I will explain you. So if you have stayed so long, and please comment what did you like in this video, and please comment if you have any other questions, and in the description box I have put the link to register if you want to register for the next live session. So I will intimate you by sending an email, so you can join and ask your questions in that particular live session. And if you got any value from this live session, please like, share and subscribe to this channel, and follow me on all the social media handles that you can see here. Okay, and see you in the next live session, and please watch other live session 1.0 which is there in the I button, and see you in the next live session. Bye bye.